to Nirmal Bang, ladies and gentlemen. I'm Hila Dadia. We have with us Kunal Shah, Head of Commodities Research, joining in. Kunal, welcome to the show. Kunal, overall, if you see in terms of where the US dollar index is concerned, do you think it will hold to its recent highs of 107.1 in terms of the US July jobs numbers that came in on Friday as well have been impressive? Plus, you have the US CPI data, which is awaited as well. And the anticipation is probably another 100 to 125 basis point rate hike is what the Fed could come out with in the next between that September, November, December policy meets. So, taking all of these factors into consideration, how are you seeing the dollar index? Yeah, so dollar index, it seems that we are going to see a further, some bit of strength in the dollar index, because what is happening is that Friday's job data is confirming that the Federal Reserve is going to be aggressive going forward. And if the Federal Reserve is going to be aggressive, then the dollar index should strengthen a bit from here. 107, 107.10 are the kind of levels where dollar index can test. But what is positive is that this week we have a US CPI on Wednesday, and US CPI is definitely going to show some bit of traction. So the inflation in the US, which is continuously surging, we are going to see this month, this inflation will show some signs of moderation. And that is really a good news for the dollar index. So the previous inflation was 9.1, expected is 8.7. So that makes me believe that dollar index will not go above 107. So हम जो आपको कहना चाहते हैं, बेसिकली इन्फ्लेशन यूएस में इन्फ्लेशन का डेटा है वेडनेसडे को 9.1 था लास्ट रीडिंग, एक्सपेक्टेड है 8.7. इट कैन इवन कम गो बिलो 8.7, 8.6. सो इन्फ्लेशन कम होने वाला है, तो बहुत ज्यादा डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग नहीं हो पाएगा. एक बार 106, 90, 107 का लेवल टेस्ट कर सकता है, बट उससे ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ नजर नहीं आ रहा है डॉलर इंडेक्स. Right. So, because of this, how are you expecting the gold and silver side of the commodity market to move? ओके, तो हमारा ध्यान तेजी का है गोल्ड और सिल्वर में, बिकॉज आप एक चीज देखिए, यूएस का स्ट्रॉन्ग डेटा आने के बाद भी गोल्ड और सिल्वर में कोई बड़ी मंदी नहीं आ पा रही है. गोल्ड और सिल्वर, लॉजिकली स्पीकिंग, यूएस का जो पेरोल्स था एक्सपेक्टेड था 220, 230 और आया 500. तो ये डेटा पे तो गोल्ड में 1000 रुपए का डाउनफॉल आ जाना चाहिए, सिल्वर में 2000 रुपए का डाउनफॉल आना चाहिए. और उसके बदले आज गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस नॉन फार्म पेरोल्स के पहले जो प्राइस चल रहे थे वही प्राइस पे गोल्ड और सिल्वर ट्रेड कर रहे हैं. सो द डेटा विच हैड कम ऑन फ्राइडे वाज वेरी बेरिश फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, बट in spite of that, we've seen gold and silver prices have marginally gone down and recovered from the lows it made on Friday. So my view on gold and silver is bullish. Both are buy at dips. Gold around 51,850, 51,900, goodbye. Silver 57,850, 57,900, goodbye. Gold target should be 52,250 to 52,300. And silver target should be around 58,800 to 59,000 in next 1 or 2 days. So expecting this bull run to continue. यूएस में जॉब का सिनारियो अभी जो बुलिश है, पर आगे जाके आईटी कंपनीज में जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कंपनी में ऑलरेडी ले ऑफ स्टार्ट हो गए. सो ये जो हमने डेटा देखा है फ्राइडे को लास्ट, ये डेटा मुझे लगता है दिस इज द लास्ट बेस्ट job data by the US. So आगे जाके we are going to see gradually deterioration in the US job market, and that should support gold and silver. दूसरा, ये जो चाइना, यूएस और ताइवान के बीच में है जो कंफ्लिक्ट चालू है, कभी चाइना के 50 एयरक्राफ्ट ताइवान के अंदर जाते हैं, कभी ताइवान कहता है हम मिलिट्री ड्रिल करेंगे, तो ये सब चीजों का प्रीमियम गोल्ड में बन रहा है. सो हमने जब रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था, तब गोल्ड में $70 से $80 तक का प्रीमियम बनते हुए देखा था. सेम वे गोल्ड में प्रीमियम बढ़ना, बिल्ट होना चालू हो गया है. गोल्ड में कोई मंदी नहीं है. गोल्ड बाय एट डिप्स, गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाने वाले हैं. और सबको लगता है 50,000 वाला 50,200 का भाव चल रहा था जब हमने बाई कॉल दिया था. आज 52,000 है और मैं 52,000 में भी कह रहा हूं ये ऊपर जाने वाला है. अब बाई कीजिए, नेक्स्ट हफ्ते तक आपको ये 52,500, 600, सिल्वर अराउंड 59,500 ऐसे 7-10 दिन में दिखा सकता है. बहुत ध्यान तेजी का है जब तक,
क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है ये अभी स्टार्ट हुई है, ये कोई 2 दिन में सॉल्व हो जाने वाला प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तो रशिया और यूक्रेन सुलझा नहीं था, तब चाइना, ताइवान, यूएस ये तीनों जन आके कुछ ना कुछ कर रहे हैं बॉर्डर पे, साउथ चाइना सी पे। और चाइना प्लेन उड़ा रहा है, फ्लाइंग प्लेन ऑन ताइवान, मिसाइल छोड़ रहा है। अगर ताइवान धमकी दे रहा है, यूएस बोल रहा है कि हम ताइवान को फुल सपोर्ट देंगे। तो ये सब कंफ्यूजन में है। गोल्ड इज गोइंग टू बी अ श्योर विनर। ऐसे हालत में कोई यूएस का डॉलर बाई नहीं करने वाला है, जो भी बाई करेंगे वो गोल्ड बाई करेंगे। तो गोल्ड का भविष्य ब्राइट है। स्टे इन्वेस्टेड इन गोल्ड फॉर ट्रेडिंग, फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर मीडियम टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म, सभी का आउटलुक तेजी है। Right. So Kunal, that's in terms of precious metals. Simultaneously, base metals पे आपकी क्या राय है, especially in terms of zinc, copper, aluminium? ओके, तो इसमें भी मेरा व्यू कुछ ऐसा है कि जब चाइना कहता है कि हमारी हालत खराब है, रियल एस्टेट मार्केट इज रियली ब्लीडिंग, कोई अभी तक स्टिमुलस पैकेज नहीं आ रहा है, और स्टिमुलस पैकेज ना आने के बावजूद भी कॉपर आज भी 656 पे ट्रेड कर रहा है, 656। जिंक आज भी 307 पे ट्रेड कर रहा है, 3 रुपए डाउन है आज। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर रियल एस्टेट मार्केट खराब है, जो 25% जीडीपी कंस्टिट्यूट करता है, तो आज कॉपर के प्राइस ऑलरेडी 630 होने चाहिए। तो प्राइसेस घट नहीं रहे, प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ये इंडिकेशन है मार्केट को कि कभी ना कभी, कब मुझे मालूम नहीं, पर पैकेज आने वाला है। चाइना इज गोइंग टू सपोर्ट देयर बैंक्स, चाइना इज डेफिनेटली गोइंग टू तो ये सब में मुझे कॉपर में तेजी लग रहा है और जिंक में भी तेजी लग रहा है। कॉपर 661, जिंक 311 का टारगेट। राइट। एंड ओवरऑल क्रूड एंड नेचुरल गैस पे आपकी क्या राय है? तेजी, दोनों तेजी। ओके, सॉरी, कॉपर और जिंक। अभी क्रूड और नेचुरल गैस में, क्रूड में मुझे ऐसा लग रहा है कि यूएस और ईरान की न्यूक्लियर डील बातें चल रही है, इसके चलते हुए क्रूड में डबल प्रेशर आ रहा है, यूएस का ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। सो मेरी राय में क्रूड आपको मौजूदा स्तर से 7055 के रेट चल रहे हैं, 7100 के आसपास आपको क्रूड में बिकवाली करनी चाहिए। 7000 के आसपास आप वो शॉर्ट पोजीशन कवर कर लीजिए। Right, so advice to sell crude at current levels, right? Yes, And natural gas? 7100, yeah. और नेचुरल गैस में भी ऐसा ही है, 635 के आसपास सेल कीजिए, 620 का टारगेट, 615 का दूसरा टारगेट। Right, so overall gold, silver, copper and zinc में लॉन्ग जाने की स्ट्रैटेजी है, और क्रूड और नेचुरल गैस में लेवल्स जो कुणाल ने मेंशन किए वो लेवल्स पे आप सेल कर सकते हैं। आई थिंक द questions also are pretty much answered, Kunal, but thank you participants. Yeah. Thank you, Kunal, for joining in. Subscribe to our YouTube channel for in-depth interviews of India Inc. and press the bell icon so that you do not miss our updates.